کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، بھارت جان لے کہ پاکستان کشمیر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور اساتذہ سے گفتگو میں فیلڈ مارشل نے کہا، پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے آئین کے تحت کام کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے۔ دوشنبے ایئرپورٹ پر تاجک ہم منصب قاہر رسول زادہ نے استقبال کیا۔ وزیراعظم تاجک صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران تاجکستان کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ گلیشیئرز کی حفاظت پر ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ فوری ختم کی جائے، نیپرا کی الیکٹرک کو ہدایت کہ الیکٹرک عوام کو سستی بجلی کا فائدہ پہنچانے میں ناکام۔ 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک NTDC سے بجلی لینے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، نیپرا کا کہ الیکٹرک کو ختم۔ اور بانی PTI کہہ چکے وہ کبھی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے، انہوں نے کچھ دو اور کچھ لو کی بات نہیں کی۔ چیئرمین PTI بیریسٹر بہار کہتے ہیں بانی PTI بے گناہ ہے، ہر قیمت پہ رہائی ہونی چاہیے۔ جنگ میں رافیل طیاروں کی ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے بھارت میں رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی۔ نئی دہلی نے فرانسیسی ماہرین کی درخواست سیکیورٹی خدشات پر مسترد کی۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ شکوک و شبہات ختم کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ تربیت یافتہ پائلٹس کی قلت کا شکار ہے۔ ممتاز دینی اور فکری شخصیات نے کالعدم TTP کے سربراہ نور ولی محسود کی سوچ اور سرگرمیوں کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دے دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا جس طرح اہل اسلام اور پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، اسی طرح کالعدم TTP اسرائیل اور بھارت کا دوسرا ساتھی ہے۔ پاک بھارت جنگ کی کیفیت میں اسرائیل ہندوستان ایک طرف، مسلمانان عالم پاکستان کے ساتھ ہے۔ نور ولی محسود کا بیان پاکستان کے اس موقف کو ثابت کرتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے خارجی دہشت گرد کفر کے اعلی کار ہیں اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ان خارجی دہشت گردوں کی ہندوستان سے امداد کے شواہد دنیا کے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت، ججز اور وکیل فیصل صدیقی میں دلچسپ مکالمہ۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا آپ کے دلائل کی بنیاد ٹھیک نہیں۔ فیصل صدیقی بولے مجھے الہام تو نہیں ہوا، دلائل تو دینے دیں۔ جسٹس جمال منتخب نے کہا آپ پیٹیشنر کے بھی وکیل ہوں تو بہت اچھے وکیل ہوں گے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا ہم مزاحمت کریں گے، ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ جواب میں جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہ تو کھلی دھمکی ہے۔ دو 2017 سے عدلیہ کو سیاست کا شکار کیا گیا، ایسے فیصلے لیے گئے جو سیاسی میدان کے تھے۔ آج عدلیہ کمر بستہ ہے کہ ان کا کندھا سیاسی جنگ کے لیے استعمال نہ ہو، اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں آج سب متفق ہیں کہ ملک کو استحکام کی طرف لے کر جائیں، اڑان پاکستان کے تحت ملک ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان نے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو اور قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا بٹ کوائن ویگاس 2025 سے خطاب۔ امریکہ سے پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی اپیل کی، کہا یہ قومی بٹ کوائن والیٹ قیاس آرائیوں یا ہائپ کے لیے نہیں ہے، ہم ان بٹ کوائن کو کبھی فروخت نہیں کریں گے، یہ بٹ کوائن خطرناک اور غیر مستحکم نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک کے بغیر کرپٹو کونسل کیسے بن گئی؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا کرپٹو کونسل سے بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ سیکرٹری خزانہ نے کمیٹی کو بتایا وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کرپٹو کونسل بنائی۔ ابھی کرپٹو کے حوالے سے ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک اور SECB میں کرپٹو پر ابھی تک پابندی برقرار ہے، جب حکومت کوئی فیصلہ کرے گی تبھی ریگولیٹری فریم ورک ہوگا۔ کرپٹو کے لیے 2000 میگا واٹ معاملے پر سیکرٹری توانائی سے بھی بریفنگ لینے کا فیصلہ۔
भारतीय रियासती दहशत गर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। आईजी आजाद कश्मीर का कहना है दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों को जिहाद के नाम पर जहनसाजी करके दहशत गर्दी फैला रहा है। उसे गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। फितना कवारिज आजाद जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी की नई मुहिम शुरू करने का ख्वाहां है। गुज़श्ता रोज इतला मिली खारिजी जरनोश नसीम और उसका गिरोह हुसैन कोट में मौजूद है। पुलिस से मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 जवान शहीद और 5 शदीद जख्मी हैं। जंग 3 से 4 रोज चलती तो भारत खत्म हो जाता। भारतीय फौज की जैसे धुलाई हुई, मजा आ गया। अब जो ग्रीन पासपोर्ट का मजा आ रहा है वो पहले कभी नहीं आया। दुबई में सब कह रहे थे वेल डन पाकिस्तान, भारतीयों के चेहरे देखने वाले थे। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन कहते हैं भारत ने जंग की शुरुआत की थी, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान पर मुल्क है, हम जंग के खिलाफ हैं। जारहियत मुसल्लत करने पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है तमाम सियासी समाजी कुव्वतें मिलकर काम करें। हम सब का मकसद अवाम की खिदमत और मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में वक्त से गुफ्तगू कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाना लाजिम है। विफाक और सूबों के दरमियान ताउन और सियासी यकजहती मुल्क की सलामती की जमानत है। नौजवान हमारे आने वाला कल है। यूथ पॉलिसी बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं इस प्रोग्राम के लिए जमाल रईसानी ने बहुत काम किया। पॉलिसियां बनाना आसान मगर उनको नाफिज करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया टाउन कराची में SICVD का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा बल्दिया के रिहायशियों का दिल के इलाज के अस्पताल का मुतालबा था जो पूरा कर दिया। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। सिंध में सेहत की सहूलतों से दीगर सूबों के आवाम भी मुस्तफीद होते हैं। बेजा तनकीद को दुआ के तौर पर लेता हूँ। हम बातों पर नहीं काम पर यकीन रखते हैं। वफाकी हुकूमत का कि इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ला सकें कि इलेक्ट्रिक और दीगर सरमायाकार अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। हम कोशिश कर रहे हैं विफाकी हुकूमत और बिजली सार्फिन पर दबाव न आए। हमारे डिस्कोर्स में रेगुलेटरी कानून नाफिज कराने चाहिए। 31% सनतों के लिए बिजली सस्ती हुई। 1 करोड़ 80 लाख घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 50% कमी आई है। स्वात में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। ग्वालेरी और अतराफ में जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। कराची में दरख्तों की कमी ने गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त बना दी। पारा 39 डिग्री को छू गया। गर्मी 44 डिग्री महसूस हुई। सिब्बी और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। नवाबशाह 46, सखर 45, तुर्बत में 44 डिग्री। सिंध में वडेरों की गाड़ियों में डाकुओं को असलहा जाता है। वडेरों ने डाकू पाले हुए हैं। शिकारपुर से कनकोट तक डाकू राज है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद सहतो के रिमार्क्स। खंबर में लेडी स्कूल टीचर सदफ हासलो कत्ल केस की समाअत में कहा सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। टीचर सदफ हासलो के कत्ल के मुलजिम कब पकड़े जाएंगे? IG सिंध ने जवाब दिया इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहले 10 लाख फिर 25 लाख रुपए रकम रखी गई। अदालत का IG सिंध को अमन की बहाली के लिए सख्त अहकाम का हुक्म। बन्नू में शहरियों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस एहलकार मुर्तजा जाँ बहक, 4 शहरी जख्मी। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला गांव के लोगों ने खुद किया। दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेमजामत डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले कांस्टेबल की आयादत की। कांस्टेबल जाफर के बेहतरीन इलाज के लिए हिदायत दी। कहा, इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद एएसआई सुधीर अहमद अब्बासी की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। उनके अहले खाना का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। अमेरिका और शाम के सिफारती ताल्लुकात बहाल। वाशिंगटन ने 13 साल बाद दमिश्क में सिफारतखाना दोबारा खोल लिया। तुर्की में तैनात अमरीकी सफीर और शाम के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची टॉम बैरक ने सिफारतखाने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। 2012 में खाना जंगी के बाद अमेरिका ने शाम से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए थे। अमेरिका ने गुज़श्ता दिनों शाम पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी। गाजा के बच्चे गजा से महरूम। इसराइली दरिंदगी के बाइस भूख और प्यास से निढाल। सहनी फौज ने 3 माह से भूखे फलस्तीनियों को भी न बख्शा। 2 रोज में इमदाद के मुंतशिर अफराद पर फायरिंग से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहाफी के घर पर भी बमबारी। खानदान के 8 अफराद वक़्मा अजल बने। अलबरीज कैंप पर सहनी फौज के हमले में 23 अफराद जान सके। अल-अक्सा अस्पताल के तर्जुमान का कहना है, इसराइल ने अलबरीज कैंप पर हमले में आलमी सतह पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल किए। वहशियाना बमबारी से मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, 180 से ज्यादा जख्मी। गजा में जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है? सलामती काउंसिल इजलास में फलस्तीनी मंदूब हजारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं का हाल बताते हुए आप दीदा हुए। कहा, आग और भूख फलस्तीनी बच्चों को निगल रही। दुनिया की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गजा में मजीद कितनी तबाही के बाद सलामती काउंसिल जागेगी। इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिले तस्वर इंसानी अलमियों को जन्म दिया। मजम्मत और तशवीश के अल्फाज काफी नहीं। नस्ल कुशी रोकने का यही वक्त है। अलजजायर के मंदूब ने खान यूनस के खैमों में जलते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखाई। कहा, शहीद होने वाले बच्चे हमास के रुकन नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने कहा, आलमी बरादरी सिर्फ ऐलानात नहीं, इक़दामात करे। अमेरिका ने कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, ट्रंप इंतजामिया ने चीन को सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर की फरोख्त पर मौसर तौर पर पाबंदी आयद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, चीन को जेट इंजन टेक्नोलॉजी और कुछ मखसूस केमिकल्स की फरोख्त भी रोक दी गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा तिजारत का कहना है, चीन को स्ट्रैटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका का चीनी तलबा के वीजे मंसूख करने का ऐलान। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीजे मंसूख किए जाएंगे। अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के भी वीजे मंसूख करेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है, चीनी तलबा के लिए वीजे के मयार में तरमीम करेंगे। आइंदा चीन और हांगकांग से आने वाले वीजा दरख्वास्तों की कड़ी जांच होगी। पाकिस्तान ने भारत को एक और मैदान में मात दी। कोलंबो में ETF अंडर-12 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान बॉयज टीम ने रवायती हरीफ को 2-0 से शिकस्त दी। राशिद अली ने BC थानोश, शायान अफरीदी ने कैथरीन यान को स्ट्रेट सेट्स में जीत किया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल श्रीलंका। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 में शिकस्त दे दी। कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में मेहमान टीम 202 रन के ताक़ुब में 164 रन पर ढेर। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, कमबैक मैच में 5 शिकार किए। T20 इंटरनेशनल में 5 विकेट हासिल करने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। कप्तान सलमान आगा की करियर बेस्ट 56 रन। शादाब ने 48 और हसन नवाज ने 44 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। शादाब खान ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाना चाहता हूं। फास्ट बॉलर हसन अली का आज़म। कहा, कमबैक करना आसान नहीं था, मुसलसल मेहनत की और टीम में जगह बनाई।
मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हसन नवाज ने कहा, ओपनर हूँ, मालूम न था मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अल्लाह ने रास्ते आसान किए। 20 वुमेन्स प्लेयर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन लेने वाली सादिया इकबाल की चेयरमैन मुहसिन नकवी से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने मुबारकबाद दी, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी दी। मुहसिन नकवी ने कहा, सादिया इकबाल का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस से फख्र है। उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी आप अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मागर्मी, खिलाड़ी एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आए। बांग्लादेश ए और जनूबी अफ्रीका ए के दरमियान टेस्ट मैच में रिपन मोंडोल ने छक्का लगाया। बाउलर्स और बैटर्स के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जनूबी अफ्रीकी बॉलर ने बैटर को धक्का दिया, फिर हाथापाई शुरू हो गई। झगड़े की वीडियो वायरल। लाहौर और पेशावर की मवेशी मंडियों में रश पड़ गया। खरीदार भावताओं में मसरूफ। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में मक्खी चीना बकरों की धूम।